carries 2 marks. So hello friends, my name is Shikha Jain, CA Shikha Jain, and I am from Career Heights, Udaipur. आज हम लोग जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो है इंग्लिश कोर फॉर योर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन. एक्चुअली क्या होता है, इंग्लिश में चिल्ड्रन हैव अ लॉट ऑफ फोबिया बिकॉज ऑफ इंग्लिश, कि इंग्लिश में मार्क्स कैसे आएंगे, बिकॉज दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सम अदर सब्जेक्ट्स. So I'm here to help you out, or I'm going to explain you the whole of subject, everything about it, the new paper pattern, and then you'll be so well acquainted, आप इतने comfortable हो जाएंगे कि you can easily score good marks, like somewhat around 90 to 95. So to begin with, let's start. The new paper pattern, because the COVID, of course, there has been some amendments and changes in the paper pattern. और अब जो नया paper pattern जो board ने दिया है, because it carries almost like 80 marks, it has been divided into 2 sections. आप देखेंगे सेक्शन A carries 40 marks. इन्होंने क्या किया है, इसको पूरा ऑब्जेक्टिव बेस कर दिया है. द रीज़न बिहाइंड इज, क्योंकि क्या होता है, बच्चे जो होते हैं ना वो चैप्टर्स पढ़ के नहीं आते हैं. They just listen to the story through their friends and they come and they attend the paper. So CBSE was like, because you've been provided with the textbooks Flamingo and Vista, so now you should be knowing what is there in the passage. Okay. So to start with section A, 40 marks. It is objective based paper जिसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से अपन स्टार्ट करेंगे. इसके 20 मार्क्स होते हैं. As we know, we've been doing reading from a long time, पर रीडिंग में MCQ based questions कम आते थे and we were asked like 2-line 3-line questions. But now it has been changed to MCQ based, और आपको एक अनसीन पैसेज दिया हुआ होता है. बहुत ध्यान से और तसल्ली से उस पैसेज को पढ़िए and then try and attend the paper. Okay, आराम से take a deep breath and then read the passage, and all the answers are definitely written in the passage. So you have to be very very comfortable और आराम से उसको read करो and you will be able to answer all the questions very very easily. Now the second unseen passage, when you go to it, it is basically a case or a fact based passage. ठीक है, ऊपर वाला थोड़ा सा जैसे स्टोरी टाइप होएगा, बट जो नीचे वाला होएगा वो थोड़ा फैक्ट बेस्ड होएगा. उसके भी 10 मार्क्स है. सारे आंसर्स जैसे मैंने बोला पैसेज में ही छुपे हुए हैं, आप इजीली आंसर कर सकते हैं. देन व्हेन आई कम टू द लिटरेचर पार्ट इज अगेन, दिस इज लाइक, बिकॉज इट इज अ MCQ और ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर, इट कैरीज 20 मार्क्स. इसमें क्या होएगा, इन्होंने इसको 3 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया है. सबसे पहले व्हेन यू कम टू क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या होएगा, आपको 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट दिए हुए होंगे दोनों बुक से, फ्लैमिंगो से और विस्टा से. तो व्हाट यू हैव टू डू, यू सपोज टू आंसर एनी 2 आउट ऑफ 3. आपकी जो इच्छा है, जिसमें आप कंफर्टेबल है, कोई भी 2 क्वेश्चन को आंसर कीजिए आउट ऑफ 3 एंड इट वुड गिव यू स्ट्रेट अवे 8 मार्क्स. बिकॉज ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है तो नो चांसेस कि आप कई मार्क्स लूज कर सकते हैं. Then when you come to question number 4, it is based on poetry. We know that poetry is covered in the Flamingo book. Okay, और ये 4 मार्क्स का आएगा, एक मार्क का एक क्वेश्चन होएगा. Then when you come to question number 5 is again a MCQ, but अब इसमें क्या होएगा, the examiner wants to see whether you have read the chapter or not. So you need to be very very conversant with the comprehension part. आप comfortable होने चाहिए, आपने chapter read किया हुआ होना चाहिए. If you've read the chapter, then very very comfortably you can score 8 marks. और इसमें से mixed questions आते हैं दोनों फ्लैमिंगो में से और विस्टा में से. Okay, so I think I have made this part very very clear, very very scoreable. मतलब you can easily score 20 marks. It is completely MCQ based, और जैसे full marks आते हैं वैसे इसमें 40 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं. नो चांसेस ऑफ डिडक्शन. इंग्लिश में नहीं तो ऐसा होता था, जब हम लिखते थे तो देयर वर ऑलवेज चांसेस व्हेनेवर वी आर राइटिंग समथिंग इन डिटेल, तो मार्क्स कटते हैं. बट व्हेन इट इज अ MCQ बेस्ड पेपर, स्ट्रेट अवे यू कैन स्कोर लाइक समवेयर लाइक 40 on 40. सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस जो CBSE ने हमें प्रोवाइड करी है. सो लेट्स अवेल द बेनिफिट ऑफ इट एंड स्कोर गुड मार्क्स. एंड नाउ व्हेन आई शिफ्ट टू द राइटिंग सेक्शन, now first let's come to the section B, which is a subjective based paper like we earlier had. जैसा हमारा subjective होता था वैसे ही है. अब इसमें जैसा कि हम writing skills करते हैं, writing skills carry 16 marks. Okay, अब इसमें आपके 4 तरह की writing skills है जो आपकी जज करी जाएगी. सबसे पहले आता है short writing task.
इसमें क्या आपके नोटिस और एडवर्टीजमेंट कवर हो रहे हैं। एज यू नो एडवर्टीजमेंट में दो तरह के एडवर्टीजमेंट्स हैं जो कवर किए सीबीएसई ने, डिस्प्ले एंड क्लासिफाइड। डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, सो दे कैन बी क्वेश्चन बेस्ड आइदर ऑन अ नोटिस और अ एडवर्टीजमेंट, ओके, एंड you are supposed to answer any one out of the two options which have been given to you. Now when I talk about the marks distribution, फॉर्मेट हियर कैरीज 1 मार्क्स। फॉर्मेट के आपको 1 नंबर मिलेगा, कंटेंट जो आपने लिखा है उसका 1 नंबर मिलेगा और एक्सप्रेशन का 1 नंबर मिलेगा। तो आप बहुत इजीली इसमें भी स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज इफ़ यू राइटिंग द करेक्ट फॉर्मेट एंड द करेक्ट कंटेंट तो 2 मार्क्स तो स्ट्रेट अवे हो गए। और आपका जितना अच्छा एक्सप्रेशन है उसके ऊपर आपका 3rd मार्क डिपेंड करता है, सो यू कैन ईजिली स्कोर 3 मार्क्स इन दिस। व्हेन आई कम टू द नेक्स्ट शॉर्ट राइटिंग टास्क, इट डिस्क्राइब्स द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन। ये आपने पढ़ा होगा जब आप 12th की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन, अब इसमें क्या है, आपसे रिप्लाई भी पूछा जा सकता है और इन्विटेशन भी पूछा जा सकता है, या फिर आपके पास ऑप्शन होएगा। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल है वो वाला अटेम्प्ट करिए, एंड यू कैन कैरी 3, इट कैरीज 3 मार्क्स, सो यू कैन स्कोर 3 मार्क्स इन इट। नाउ व्हेन आई कम टू क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डिटेल्ड राइटिंग स्किल है। आपने जॉब एप्लीकेशन करा होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट अ जॉब एप्लीकेशन covers a cover letter as well as a CV or a resume. So whenever you're writing any job application, please make sure that you definitely write a cover letter. बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी केवल CV या resume देकर आ जाते हैं और उनको मार्क्स नहीं मिलते हैं। A job application is complete only when you write a cover letter for it. So then is a letter to the editor तो शायद हम 7th 8th क्लास से लिखते आ रहे हैं और हम इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि हम आँख बंद करके लिख सकते हैं। तो आपके ऊपर है आप कौन सा ऑप्शन अटेम्प्ट करना चाहते हो, अटेम्प्ट करो एंड स्ट्रेट अवे यू गेट 5 मार्क्स। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस, इसमें फॉर्मेट के एक ही नंबर है, ठीक है। यू नो कि ये जो जॉब एप्लीकेशन का कवर लेटर होता है उसका भी जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। सो देन फॉर्मेट कैरीज 1 मार्क, कंटेंट 2 मार्क्स एंड द एक्सप्रेशन। हम राइटिंग स्किल्स की बात कर रहे थे और हमारी लास्ट राइटिंग स्किल रह गई थी। सो द लास्ट राइटिंग स्किल विच वी नीड टू टॉक अबाउट इज़ आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग। सी, now I would like to tell you something about an article or a report writing. It is like article और report, जितना ज़्यादा आप impressive with quotes लिखोगे या थोड़ा चटपटा बनाओगे उतना अच्छा लगेगा। Because see, हम कोई article और report कब पढ़ते हैं, जब उसकी heading बहुत अच्छी होती है, जब उसका content बहुत interesting होता है। तो even if the topic which is not given to you is very very interesting, you need to make it interesting so that the examiner is forced to read and give you marks. इसके 5 मार्क्स है, कम नहीं होते 5 मार्क्स। सो यू हैव टू राइट द आर्टिकल एंड रिपोर्ट इन अ वेरी वेरी गुड मैनर। और इसमें जो इन्होंने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है दैट इज़ अगेन फॉर्मेट का 1 मार्क्स, कंटेंट के 2 मार्क्स और एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स। सो आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेरी कंफर्टेबल विद राइटिंग एन आर्टिकल एंड अ रिपोर्ट बिकॉज वी बीन डूइंग इट फ्रॉम लॉन्ग। तो हम सब कर सकते हैं और ईजिली स्कोर कर सकते हैं। See, the word limit which is usually asked is like about 120 to 150 words. उतना बहुत होता है और उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर मेक श्योर कि आपका सब कुछ कवर हो गया है। अगर थोड़ा बहुत एक्सीड करता है इट इज़ ओके, पर ऐसा नहीं हो कि आप उसको लिखते ही जाओ और आपका दूसरा क्वेश्चन मिस हो जाए, राइट? ओके, नाउ व्हेन आई कम टू द सब्जेक्टिव लिटरेचर पार्ट, जो सब्जेक्टिव लिटरेचर वाला पार्ट है इसके 24 मार्क्स है। इन्होंने इसको 4 क्वेश्चंस में डिवाइड किया है। व्हेन यू कम टू क्वेश्चन नंबर 10, उसमें आपको एनी 5 क्वेश्चंस को आंसर करना है आउट ऑफ 6, और ये पूरे फ्लैमिंगो में से पूछे जाएंगे, पूरे फ्लैमिंगो बेस्ड होंगे। एंड द वर्ड लिमिट विच यू नीड टू राइट फॉर दिस इज़ लाइक 30 to 40 वर्ड्स। उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उतना ही लिखिए। और इसके 10 मार्क्स है, देयर आर 5 क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क्स ईच, सो दैट कैरीज लाइक 10 मार्क्स। When you come to question number 11, it is again short answer question and you have to answer 2 out of 3. अब ये विस्टा वाली बुक में से पूछे जाएंगे and you have to answer again this in 30 to 40 words, and this is like 2 questions for 2 marks, so 4 marks each. Then question number 12 is a long question. As we know कि फ्लैमिंगो में we have prose and poetry both, तो किसी में से भी आप चूज़ कर सकते हैं। यू हैव टू आंसर एनी 1 out of 2, और ये फ्लैमिंगो में से ही पूछा जाएगा। और इसकी जो वर्ड लिमिट है इट इज़ लाइक 120 to 150 वर्ड्स। ये बहुत मतलब इट विल बी मोर लाइक जनरल क्वेश्चन
और ये मतलब आप इस पे अच्छे से एलोंगेट कर सकते हो, उसको लंबा लिख सकते हैं। तो 120 से 150 शब्द का आप इसको आराम से लिख सकते हैं। इट कैरीज 5 मार्क्स। व्हेन आई कम टू क्वेश्चन नंबर 13, इट इज़ सिमिलर लाइक द वे यू आंसर क्वेश्चन नंबर 12। द ओनली डिफरेंस इज ये विस्टा में से पूछा जाएगा, and again this you supposed to answer in 120 to 150 words, and then it carries 5 marks. So I think I've explained the whole pattern in quite a brief manner. आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर कैसे आएगा और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। Don't worry, you would have sufficient time. प्लीज़ अटेंड द पेपर पीसफुली। जिनको भी स्क्रीनशॉट्स लेने हो जब भी पेपर पैटर्न के, वो ले सकते हैं टाइम टू टाइम, because it will help you before the exam to see how you're supposed to attend the paper. And it is preferable that you attempt the objective part first, because वो quickly हो जाएगा। और अगर आपने chapters और poems and everything if you've read properly, तो definitely marks आपके कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। Plus one more thing I would like to say, don't forget to remember the names of the writers or the authors or the poets, because at times it is asked. So you should know all the names, and this is how you prepare for English. See, English को बहुत लोग ignore करते हैं, but I feel you should not ignore English, because now CBSE has given us a chance to make it all the more scoring, और आपकी 12th की जो percentage है वो उससे improve हो सकती है। तो why not take advantage of it? I'm wishing you all the very best for your examination. I hope you all do well. Please stay safe, stay home. Thank you so much.